गाइस आराम से मस्ती मत करो। किसानों को पता है कि ऑर्गेनिक आप चीज़ें करो, ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा ये करो, तो सारा चीज़ें वो तो है। लेकिन क्या है, देखिए कैसा है कि ये मतलब आप आजकल जो भी है दूध से लेके हर एक जगह पे, ऐसा नहीं कि मतलब आप जो सब्जी खा रहे हैं उसी में खाली पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स हर एक जगह पे है, केमिकल्स। आप देखो, आप जो भी आप कोई भी होटल में जाए, आप कोई भी कुछ भी चीज़ जूस मंगाते हैं, अभी जूस में अभी कोई मैंगो जूस मंगाता है तो उसके पीछे आप कभी एक बार पढ़ लेंगे तो उस पर लिखा है दिस इज फ्लेवर, तो उस वो फ्लेवर लिखा है, उसके अंदर आपको हमें लगता है कि उसमें मैंगो है, मैंगो का जूस है, लेकिन नहीं, वहाँ पे पीछे आप कभी पढ़ो आप तो ये ना, ऐसा बहुत चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है, लेकिन हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हर एक इंसान यहाँ पे जो भी है भारत में, हम क्यों मेहनत करते हैं कि हमारे फैमिली के लिए अन्न, वस्त्र और निवारा, ये सबसे जरूरी चीज़ें हैं जो हम उसी के लिए तो मेहनत करते हैं। लेकिन आपके पास आपका थाली में अगर अन्न ही बराबर नहीं है तो वस्त्र और निवारा का क्या करोगे आप? बड़े बड़े नाम वाले लोगों के वो भी उन्होंने बयान किया है, तो गवर्नमेंट भी वो काम कर रही है। Hi guys, experiences, right? Hi, very good question. Very good afternoon to all of you. Thank you so much, all our dear friends from the media, for being here. ये स्क्रिप्ट में हमने क्या देखा, तो मुझे लगता है कि ये एक कहानी है जो हम सबको यूनाइट करती है. Food is one point which brings us all together. You eat, I eat, we feed our kids. It's something that's so personal to all of us. Or this story is something that's extremely personal. It's very relevant to today's day and age. It's something that all of us are facing. If the food that comes on your dining table is adulterated, none of us are okay with that. Yeah. So it's extremely important and crucial. A subject like this has to be told. And it's very important in today's day and age, considering the amount of food adulteration that's going around, considering the impurity that we face at every level, at every stage of consumption. So this was something that really was personal to me, considering that I'm a mom, and considering that what am I feeding my child? And it's an extremely emotional script. It's presented in a beautiful manner. It's extremely emotional. It's a sensitive topic about a family. And the journey of a 6-year-old who suffers from cancer because of food adulteration and because of pesticide farming. Of course, we're not anti-farming, or we are not trying to be alarmists and spread fear. What we are trying to spread through the course of this film is awareness, conscious choices, and the most important thing is conversation. It's extremely important for all of us to talk about this and spread the message. And of course, take responsibility at a personal level. Like Chetanji said, read the labels behind, be aware of what you're consuming and feeding your kids. So these were things that were very important to me. I've always been someone who's been very conscious of what I am bringing into my home. And when there was a subject like this that was going to be made and be spread through the medium of cinema to such a vast audience, of course I was very interested in doing it. Shreyas Bhau. नमस्ते, सबसे पहले तो सबका स्वागत एंड थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए। जैसे काजल ने कहा, कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ रील्स देखते हैं, आजकल मीम्स देखते हैं, मतलब हाँ यार ये हो रहा है, हाँ यार ये हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, और हम इस चीज़ को सीरियसली कब लेंगे? कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक शुरुआत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस थोड़ा और बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगना चाहिए कि भाई ये जो चल रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पर्सनली मुझे तो लगता है हमारी जनरेशन तो फिनिश्ड है दोस्त, बिकॉज ये जिस लेवल पे करप्शन, फूड करप्शन आज हुआ है,
वेदर इट इज पेस्टिसाइड फार्मिंग और वेदर इट इज एडल्ट्रेशन जो चल रहा है, तो वो मुझे लगता है एटलीस्ट अगर हमारी अगली पीढ़ी को हमें बचाना है और उन्हें एक अच्छी क्या बोलते हैं जिंदगी देनी है, तो कहीं ना कहीं आज हमें शुरुआत करनी होगी। क्योंकि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू होने में भी सब ठीक होने में भी एक 5-7 साल चले जाएंगे, बिकॉज जमीन इतनी हमने वो पेस्टिसाइड से वगैरह उसको केमिकलाइज्ड कर दिया है कि फॉर दैट टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म विल टेक सम टाइम। बट वी फेल्ट कि जब मैंने कहानी सुनी, और ये कहानी एक फैमिली की है, कि ये सब जो चल रहा है इससे एक फैमिली कैसे अफेक्ट होती है, एक हंसता खेलता अच्छा परिवार कैसे अफेक्ट होता है, और क्या बेचारों का स्ट्रगल वहां से उनका अलग लेवल का शुरू होता है और कहां जाके खत्म होता है, और जो एंड होता है वहां पे वो बच्ची एक चीज बोलती है, वो चीज आपको हिला के रख देती है। वो बच्ची एक जो चीज बोलती है उसके फादर को, वो सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जनरेशन अगर ऐसा सोचेगी तो वी आर फिनिश्ड, यू नो। सो आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन, और उसके लिए ऐसी फिल्म ऐसे सब्जेक्ट पे बनाना मुझे लगता है हिम्मत लगती है, यू नो, बिकॉज यस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, बट इंफोटेनमेंट मैं कहूंगा है, इंफॉर्मेशन भी है, एंड एक एंटरटेनिंग फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सो आई फेल्ट कि समवेयर वी, लाइक शी सेड, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। श्रेयस बाबू, आपका पुष्पा वाला जो किरदार है वो बहुत फेमस है, उस वॉइस में आप बोल सकते हैं फिल्म के बारे में कुछ कि जरूर आके देखें, अगर हो सके तो थोड़ा सा अपने फैंस के लिए पुष्पा भाऊ के अंदाज में। हाँ, थोड़ा सा इतना सब सीरियसली बोला श्रेयस भाऊ पुष्पा भाऊ की आवाज में कुछ बोला नहीं, तो खाली मैं यही बोलूंगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और ये जो काम इन्होंने हाथ में लिया है ये रुकेगा नहीं। वाह, क्लैप कर दो एक बार यार। Hi guys, this is Preeti from Vibrant Colors magazine. First of all, congratulations to all of you for coming out with such a vast subject, the India story. जब हम खाने की बात करते हैं तो उसमें बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते, और खासकर फेस्टिवल्स को नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल्स आर कमिंग अप, तीज है, ओणम है, रक्षाबंधन है, और जब बच्चे की बात करते हैं तो मिठाई, और मिठाई की जब बात होती है तो उसमें बहुत सारे स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, केमिकल्स होती हैं। हम इस चीज़ को कैसे सबके सामने लेके आए, बिकॉज एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा आपने कहा, तो आप लोग इस फिल्म के माध्यम से कैसे बैलेंस बना रहे हैं कि इंटरटेनमेंट भी मिले और एक सोशल मैसेज भी जाए, खासकर बच्चों के लिए। कल ही मैं एक रील देख रही थी, वो कैडबरी सिल्क जो आता है, जब उसको ओपन किया टिल 2032 तक की उसकी वैलिडिटी है, बट जैसे उसको ओपन किया देयर इज अ पाम ऑयल इन दैट, तो उस ग्रोसरी शॉप ने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि अब हमें उसको नहीं रखना है क्योंकि बच्चों के लिए वो हानिकारक है। तो खासकर बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है इस फिल्म के थ्रू? एनीवन यू कैन आंसर दिस। एक्चुअली आपने मिठाई की बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में डेली का ओरिजिनल दूध आता है 15 से 16 करोड़ लीटर डेली का। मैम, रोज की रिक्वायरमेंट है 65 से 70 करोड़ लीटर की। देखिए, आता है 15 से 16 करोड़ लीटर, रिक्वायरमेंट है 65 से 70 करोड़ लीटर की। देश की लोक संख्या 150 करोड़ है। ऊपर से इंडिया से दूध एक्सपोर्ट भी होता है। ऊपर से जो डेली के आपने बोला कि कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, डेली भी कुछ ना कुछ इवेंट्स रहते हैं जहां से मिठाई बनती है। मिठाई किससे बनती है? दूध से बनती है मैक्सिमम। फिर दूध आता कहां से? तो आप समझे कि जो भी आजकल मार्केट में आ रहा है, तो मतलब इतना दूध इतना कैसे मतलब कैसे पहुंचेगा और कैसे मिठाई बनेगी? तो सब कुछ भेसल ही है। तो बच्चों को क्या आप इस फिल्म के थ्रू कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? हम देखिए, बच्चों को लेकर देखिए, ये तो बच्चे को तो है, आपकी फैमिली है, सबकी फैमिली है। अपनी माँ बाप की सुनो। हाँ जी, इसलिए तो मैं ये जो फिल्म है द इंडिया स्टोरी, ये फिल्म देखने के बाद दूसरे दिन से आप उसी रात आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड के लिए मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप के लिए मैं क्या खाना लाऊं, ये आप सोएंगे नहीं। मतलब ये अब देखिए, आप बहुत सारे फिल्म्स देखते हैं, इंटरटेनमेंट रहते हैं, कोई कॉमेडी रहता है, हर एक चीज। ये फिल्म देखने के बाद अगर थिएटर से बाहर आते हो, उस घर जाने तक आप ये सोच आपके दिमाग में रहेगी कि मेरे फैमिली के लिए मैं क्या कल से क्या करूं। मतलब ये स्क्रिप्ट जब हमें पहली बार सुनाई, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उस रात मैं मतलब जब खाना खाने बैठा
तो पहला निवाला लेते वक्त मैंने भी सोचा कि मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई ईटिंग। ये आज अगर हम कहते हैं कि गोभी कैबेज जैसी सब्जी भी अगर केमिकली मेड है, जो हम देखते हैं कुछ वीडियोस में, तो आपको शक होने लगता है कि क्या खा रहे हैं हम, अपने पेट में क्या डाल रहे हैं हम लोग। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी आर अवेयर, कि कुछ चीजें पेस्टिसाइड लेडन, कुछ केमिकल तो होगी, बट वो चीजें एटलीस्ट वील ट्राई एंड फाइंड आउट सोर्सेस जहां से ऑथेंटिक चीजें मिले। और एक बार वो होना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा हम भी अपना अवेयरनेस अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इन चीजों को कम होना ही पड़ेगा। देयर इज नो द ऑल्टरनेटिव। हम जब सवाल पूछेंगे, जब हम जाके बोलेंगे कि नहीं भाई आप कहाँ से लाते हो बताओ, कहाँ से क्या बना है ये बताओ, तो थोड़ा दे हैव टू बी आंसरेबल। आज जो हम डायरेक्टली सारी चीजें ले लेते, लेट दोस पीपल आल्सो बी आंसरेबल टू सर्टेन थिंग्स, ओनली देन थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। Also, I want to add to that, it's extremely difficult to absolutely eradicate chemicals from your life. The amount that we use today is so much in such massive quantities that it's going to be very hard for us as society, civilization to completely let go of something like this and to go back to our roots where everything used to be pure. Of course, that's ideal. That's the ideal world that we all want. But if we are aware of it and we are conscious of what we are consuming, at least we can minimize it. And that minimization is also good enough. If you're conscious of what you're bringing into your kitchen, where are you getting your produce from? Where are you getting your groceries and your ration from? If you authenticate the source, even that much is a very big difference than not being bothered and doing instant services, instant deliveries, immediately just taking anything and cooking with it. That is what is scary, because then you don't know, you have no control over that. And that is what is scary to feed your kids. So if we are careful of it, I feel that's half the battle won. तो मैं आपको मैं वही बताना चाहता कि आपको इसीलिए तो हमने कहा था कि ours is still very at a different level. And when it comes to oils and all of that, of course there are issues with things, but we are not talking about all of those through our film. Our film is specifically talking about adulteration at a pesticide level. So I feel that keeping that in mind, it's important to first find out whether you are getting your produce, whether you're getting your vegetables and your fruits through legitimate farmers and people who are genuinely doing this at an organic level. And nowadays itna फैल गया है कि marketing, organic has become a marketing word. So it should not be at a level where it's just a marketing gimmick, but it should genuinely be organic. Like what Shreya said, इसे actually organic होने में इतने साल लगते हैं क्योंकि धरती को बदलना पड़ता है. You have to actually be so careful about what you're consuming. उसी के दौरान मैं 1.5-2 महीने पहले एक न्यूज आई थी, एक मुस्लिम फैमिली, 2 बच्चे थे उनके, वाटरमेलन से उनकी इंजेक्ट करने से, तो वाटरमेलन को भी इंजेक्शन दिया जा रहा है। मेरे पास ऐसे वीडियोस है जो अंदर का कलर लाल होने के लिए वो सारी चीजें, तो देखिए मतलब वाटरमेलन से डेथ हो गई फैमिली, तो कितना भयानक है सारी चीजें। हेलो सर, दिस साइड। पहले तो सभी को नमस्कार। सर अभी श्रेयस सर बात कर रहे थे कि पता सभी को है, जानते सभी हैं, और यहाँ पर भी इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्या आपने फिल्म के माध्यम से सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश की है? जो टॉपिक आपने इस फिल्म के अंदर दिखाए हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी आपने कोशिश की है दिखाने की? वही कह रहा हूँ, जिस दिन आप ये फिल्म देखोगे उसके बाद आप सॉल्यूशन आपको मिला रहेगा और आप उसका दूसरे दिन स्टार्ट करोगे क्या करना है। सर आप क्या सोचते हैं? जी सर। नहीं बिल्कुल, मतलब जो कहानी आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन सॉल्यूशन जो दिया जाता है, ओके, एंड इट इज एट अ नेशनल लेवल, यू नो, सो बदलाव थोड़ा थोड़ा, लाइक आई सेड कि इमीडिएटली रातों रात तो चीजें नहीं बदलेंगी, उसको वक्त लगेगा। आज ये जो एक लाइन है टीजर में कि हरित क्रांति के नाम पे जो जहर का तूफान फैला है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सो इट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, और आज जाके हम जब सुनते हैं कि एवरी अदर फैमिली में किसी न किसी को कैंसर, ये सुनते हैं। जब 80s में आई रिमेम्बर एक आध कोई ऐसे सुनते थे और तब इतना भयानक लगता था, बाप रे कैसे हुआ, तो कोई कहता था नहीं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं या वो तंबाकू खाते हैं उसके वजह से शायद उनको हुआ है, वो अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आज एवरी अदर फैमिली इज विक्टिम ऑफ कैंसर, यू नो। सो आप सोचिए अगर
ये 25-30 सालों में या 40 सालों में अगर ये इतना हुआ है तो अगले और 20 सालों में क्या होगा? सो अगर अभी हमने कोई स्टेप्स नहीं उठाए एंड इट इज ऑन ईच वन ऑफ अस, सो आप जब फिल्म देखोगे तो ईच वन विल टेक समथिंग बैक होम एंड डिसाइड कि नहीं, जैसे मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स मेरे लाइफ में से बहुत कम कर दिए। ओके, सो पनीर जो एक्चुअली प्रोटीन का एक इतना अच्छा जरिया है, बट वो मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया। यू नो, मैं फिश, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं फिश खाता हूँ। सो ऐसे कुछ चॉइसेस है जो हमें करने होंगे अनफॉर्चुनेटली, but we'll have to be more careful, more aware of what we are doing, and only then things will start slowly changing. हर एक बंदे का, हर एक कंपनी का, हर एक ब्रांड का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझी और ये फिल्म बनाई। I don't, have you ever endorsed any commercial foods? Not really. मैंने भी कभी कमर्शियल फूड्स को इंडोर्स नहीं किया, चॉइस के वजह से। मेरी चॉइस थी कि मैं प्रमोट ना करूं। सेम फॉर हिम, सेम फॉर हिम। सो नंबर वन, टू आंसर your question is that we personally haven't endorsed anything, but endorsement अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन हमारी फिल्म न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं कर रही। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज अ चॉइस, यू मेक इट और यू डोंट मेक इट, वो आपकी इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर आपको हेल्दी जीना है या आपको फ्राइड फूड पे जीना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, वो है फार्मिंग और प्रोड्यूस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारा जन्म अधिकार है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो, उसमें अगर अडल्टरेशन हो, तो वो बात तो एकदम गलत है ना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में कैसे है? जो वेजिटेबल्स हमें मार्केट से मिलेंगी, हम लोग वो ही पका के खाएंगे। आई विश हम सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में फार्मिंग कर पाते, लेकिन नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग दैट्स नॉट अ चॉइस। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज योर चॉइस। आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप खाना ना खाएं, फिर आप जियोगे कैसे? हेलो। एंड कुछ चीजें आपको जब समझ में आती है, ऑब्वियसली देयर इज मोर अवेयरनेस नाउ, यू नो, ग्रेटर अवेयरनेस नाउ। तो ऑब्वियसली जब ब्रांड्स की भी कोई बात आती है तो आप देखते हो, आप पूछते हो, आप समझने की कोशिश करते हो सामने वाला कितना रिस्पॉन्सिबली उस चीज को प्रमोट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो देख के देन यू गो अहेड एंड ईदर डू सर्टन थिंग्स और यू डोंट डू सर्टन थिंग्स। एंड लाइक काजल सेड कि आपकी चॉइस है। आज कितने वीडियोस ऐसे भी रहते हैं कि सेलिब्रिटीज ने कुछ प्रमोट किया है जहां लोग बोलते हैं कि देखो भैया, खुद तो ये खा नहीं रहा है, ओके, लेकिन ये प्रमोट कर रहा है, तो वो आपको भी समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि ऐसे तो फिर मैं ये फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, टेक्निकली तो पूरी जनता ने जाके फिल्म भी देखनी चाहिए क्योंकि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, बट वैसा होता नहीं है। चॉइस आपके हाथ में है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आप भी समझते हैं। जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी बोलता है उसका मतलब वो सही होगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो चॉइस आपके हाथ में। एंड व्हाट काजल इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि जो बेसिक प्रोड्यूस है, जो खाना अनाज खेतों में से बन के आता है, ओके, वो तो एटलीस्ट शुद्ध हो, प्योर हो, कि जो हमारे फैमिलीज को हम लोग दे रहे हैं। बाकी सारी चीजें तो उसके बाद उसके ऊपर सारे यू नो क्या कहते हैं स्टफ हो जाता है, एंड देन यू ईदर गेट इट और यू डोंट। बट जो बेसिक स्टफ है वो तो एटलीस्ट हमारे लिए प्योर होना चाहिए, जो बच्चों के लिए हम देते हैं। Hi. Your child in your family is completely disturbing, you know, and especially when you are a father yourself, you know, you immediately tend to relate things with your family, with your child. And for us also as actors to do certain sequences is very difficult. You know, it takes a part of you every time you do something like that. So there are sequences in the film which are very touching, which could be a little disturbing, and which could get you also a lot more emotional than what probably you feel you are. You know, so every time you do a film, then I think, you know, as actors we try to balance it with a comedy, you know, because you also need some
other kind of laughter or entertainment in your life when you do, especially a film like the India Story, which is very, very heavy on emotions. So, but I think a subject like this needs to be told, needs to be conveyed, and it is something which everyone will relate with. Every parent especially will relate with, because they know that an incident like this can completely disturb your entire life. You know. So I don't know. I mean, I felt very as if a part of me was, you know, I gave a part of mine while doing it. I don't know how Kajal felt. Same. I think. What made you do? And in future, will we see you in such roles, or will you be just, restricted to comedy? Because we love your comedy from Golmaal series, from so many films. You are a rockstar. And sir, एक बार बताओ, मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो मैं आपकी पिक्चर लगा के बैठ जाती हूँ, तो I can't control में ना, फिर मेरा मूड ऐसे चेंज होता है. नहीं, ये देखिए आपका मूड बना रहे, इसलिए मैं कॉमेडी करता रहूँगा. So, but on a serious note, as an actor, I feel when I wake up in the morning, what is it that I look forward to? The reason why I am an actor is because I want to play different parts, because I want to live different lives every day. मैं कभी वकील बनना चाहता हूँ, कभी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी मैं एक कॉमन मैन एक काम करना चाहता हूँ, और वो जब मुझे करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मैं खुद भी हंसूँ, लोगों को भी हंसाऊँ. इसलिए गोलमाल जैसी फिल्में हों या वेलकम जैसी फिल्में हों तो वो करना अच्छा लगता है. बट एट द सेम टाइम ऐसा एक सब्जेक्ट आपके पास आता है जहाँ आपको लगता है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू मे बी आज देखिए तुकाराम मुंडे जी महाराष्ट्र में जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है, आज फिल्म भी उसी लाइन पे हम रिलीज करने जा रहे हैं. सो देयर इज अ कॉन्वर्जेशन. आज लोग उसके बारे में एटलीस्ट बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं. तो वो कॉन्वर्जेशन शुरू करने वाला अगर कुछ मुद्दा हमारे पास हो और हम उस पर काम कर सके, हमारा किरदार निभा सके, तो यू फील वेरी हैप्पी एंड यू फील वेरी ब्लेस्ड. सो येस, आई वुड लव टू डू डिफरेंट films including comedies, but at the same time I think a film like this or a film like Kaun Praveen Tambe, a film like Iqbal, Sachin Guru, there's a mix of things which makes our life also interesting enough to make sure that we entertain you in the same manner. Thank you, sir. सिर्फ देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म को ऐसे कोई बैन वैन ना हो. ओके. और अगर वैसा कुछ होने वाला हो तो मैं ये भी कहूँगा कि पहले 3 दिन में फटाफट देख लीजिए थिएटर में जाके. ओके. बट हमारा काम है, हमारे काम के ज़रिए लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना जो हमें लगता है. बेसिकली पिक्चर या सिनेमा क्या होता है? इट्स अ मिरर टू द सोसाइटी, राइट? जो चीज़ें हो रही है हम उसे अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं. तो वो अगर आपके पास सक्सेसफुली पहुँचती है तो पिक्चर हिट हो जाती है, अगर नहीं पहुँचा पाते तो पिक्चर नहीं चलती है. ओके. So this is our job. This is what we can do. This is our contribution to make a statement to what we want to say. कि भाई ये चीज़ें हो रही है, अब जनता आप सोचिए कि क्या करना है और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है. जो हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं. इसके आगे भी क्या कर सकते हैं, उस वक्त क्या होगा ये उस वक्त तय किया जाएगा. But because we are convinced about the subject, we are a part of the subject. And it is coming in front of you in form of a cinema. That is what जो हमारे हाथ में है वो हम